அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்ட் மெடல்ஸ் ஹிந்தி கைட்ஸ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். தாங்கள் தொடர்ந்து அளித்து வரும் ஆதரவுக்கு எனது உளமார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றேன். இன்றைய தலைப்பு கபீர் காவிய என்னும் தலைப்பு. கபீர் காவிய என்னும் தலைப்பில் நான் நிறைய விஷயங்களை தங்களுக்கு அவர் கூறிய கருத்துக்களை எடுத்து சொல்லி வந்திருக்கிறேன். அதன்படி இன்றைக்கு அவருடைய ஒரு கருத்தை தங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள விளைகின்றேன். தங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், कबीरदास आप जानते ही हैं, कबीरदास भक्ति काल के कवि हैं. वे நிகுண பக்த கவி हैं. இறைவனுக்கு உருவம் கிடையாது என்ற கொள்கையுடையவர். வே நிகுண பக்த கே கவி हैं. யாதும் ஒரே யாவரும் கேளீர் என்பது போல எங்கும் இருப்பார் இறைவன் ஏகாந்தமூர்த்தி என்ற கருத்துடையவர். அவருக்கு உருவ வழிபாடு என்பது கிடையாது என்ற கருத்துடையவர். वे निर्गुण उपासक हैं. वे चाहते हैं और मानते हैं कि भगवान हर जगह विद्यमान है. वे कहते हैं, घट घट में वो साई रमता कटुक वचन मत बोल रे. ஒவ்வொரு உடம்பிலும் இறைவன் இருக்கிறார். ஆகவே நீங்கள் யார் மீதும் கசப்பான வார்த்தைகளை பேசாதீர்கள், அதை நீங்கள் இறைவனையே பேசியது போன்று என்று சொல்வார். तो उसी प्रकार यहाँ भी आज भी उनका कहना है, भगवान एक हैं. ये तो सब मानते हैं, गॉड इज वन, सब मानते हैं. इसी के आधार पर वे अपनी अपने अपनी बात की पुष्टि करते हैं, अपने मत की पुष्टि करते हुए कहते हैं और आपसे बोलते हैं. आप देख लीजिए, वो जो मैंने जो फोटो आपको भेजा है उसको आप देख लीजिएगा. उसमें कहते हैं कबीरदास जी, दुई जगदीश कहाँ ते आए, दुई जगदीश कहाँ ते आए, दोनों भगवान कहाँ से आए, दुई जगदीश कहाँ से आए, कहो सुल कहो कब कब किसने भरमाया भरमाया फरमाया. किसने कहा, இரண்டு கடவுள் என்று உங்களிடம் யார் சொன்னது, எப்பொழுது சொன்னது, ஏன் சொன்னது, அவர் எங்கிருந்து வந்திருக்கிறார், இந்த கேள்விக்கு நீங்கள் பதிலளிக்க வேண்டும் என்கிறார் कबीरदास. நான் இல்லை, कबीरदास. कबीरदास ही कहते हैं, दोनों भगवान कहाँ से आए, कैसे आए, किसने कहा, किसने समझाया, किसने दिखाया, किसने बताया. इन सारी बातों का समाधान नहीं निकलता. इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, भगवान एक ही है, एक ही ने अनेक नाम रखवा लिए. ஒருவரே நிறைய பெயரை தான் வைத்துக் கொள்ளவில்லை, நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம். ரக்வாலியே வைத்துக்கொள்ள செய்தார், அதையும் அவர் செய்தார் சொல்வார்கள். அவனருளால் அவன் தாழ் பணிந்து என்பார். அவனருளால் அவன் தாழ் பணிந்து, அவன் தாழ் பணிய கூடிய கூட அவனுடைய அருள் வேணுமாமா. அதுபோல இப்படி எனக்கு நீங்கள் நிறைய பேர் வச்சுக்குங்க என்றும் அவர் அருள் புரிந்தார். அதனால் தான் நாங்கள் அவருக்கு நிறைய பெயர் வைத்திருக்கிறோம். ஆனால் அவர் ஒருவரே, கடவுள் ஒருவரே, காட் இஸ் ஒன் என்பார்கள். अल्लाह, राम, करीम, केशव, हज़रत नाम धराया. कुछ लोग उसको अल्लाह बोलते हैं, कुछ लोग उसको हज़रत बोलते हैं, कुछ लोग उसको हज़रत बोलते हैं, कुछ लोग उसको करीम बोलते हैं, कुछ लोग उसको ईसा बोलते हैं और कुछ लोग उसको राम बोलते हैं. और इस प्रकार उसी ने नाम रखवा दिए हम लोगों के द्वारा. இப்படி அல்லாஹ் என்றும், கரீம் என்றும், கேசவன் என்றும், ராமன் என்றும்,
ஹதரத் என்றும் பல பேரில் அவர் அழைக்கப்படுகிறாரே தவிர அவர் ஒருவர் தான். ஆகவே நாங்கள் பல பேரை வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் அவருக்காக ஒருத்தர் அடித்து கொள்ள வேண்டாம் என்கிறார். அடுத்தது கஹனா ஏக் கனக்தே கஹனா இஹி மகம் பாவ்னா தூஜா. இப்போது நீங்கள் பெண்கள் பெரும்பாலும் நகைப்பிரியர்கள், நகை வாங்க கடைக்கு செல்வீர்கள். அங்கே நகை வாங்க கடைக்கு சென்றால் கையிலே போட்டால் அதுக்கு என்ன பேர்? தங்கம் என்று பேரில் வளை என்று பெயர். விரலிலே போட்டால் அதற்கு என்ன பேர்? மோதிரம் என்று பெயர். இடுப்பிலே போட்டால் அதுக்கு என்ன பெயர்? ஒட்டியானம் என்று பெயர். காலிலே போட்டால் அதற்கு சிலம்பு என்று பெயர், தண்டை என்று பெயர், கொலுசு என்று பெயர், சலங்கை என்று பெயர். அதுபோல் மூக்கிலே போட்டால் மூக்குத்தி என்று பெயர், காதிலே போட்டால் கமல் என்று பெயர், சரமாக போட்டால் சங்கிலி என்று பெயர், நெற்றியிலே போட்டாலுக்கு நெற்றி சுட்டி என்று பெயர். ஆனால் எல்லாத்தையும் நாம் ஒரே பேர் சொல்கிறோமா? சொல்வது கிடையாது. அதே போல் அல்லாஹ் என்றாலும், ராம் என்றாலும், ரஹீம் என்றாலும், கேசவா என்றாலும், ஹதரத் என்றாலும் எல்லாருமே அந்த எப்படி நகைக்கு பல பேரோ அதுபோலத்தான் இறைவனுக்கு பல பெயர். ஆனால் இறைவன் ஒன்று. அதுபோல இத்தனை பேருடைய அந்த அத்தனை ஆபரணங்களையும் நாம் இதனால் தயார் செய்கிறோம்? தங்கத்தால். அப்போ தங்கம் ஒன்றுதான், தங்கம் ஒன்றுதான். தங்கத்தால் செய்யப்படுகின்ற ஆபரணங்களுடைய பெயர்கள் வெவ்வேறு. சரி, அதற்கு விலை என்ன என்றால் அவன் விலை போடுவான். என்ன விலை போடுவான்? இன்றைய தங்கத்தின் விலை கிராம் எவ்வளவு என்று சொல்லி பொதுவான தங்கத்தினுடைய விலை வைத்துக்கொண்டுதான் எல்லா நகைகளையும் அவன் எடை போடுவான். தங்கத்தினுடைய எடை இவ்வளவு, அதற்கு எவ்வளவு மதிப்பு என்று அவன் போடுவான். நாங்கள் பணம் கொடுக்குறோம், பாட்டுக்கிறோம். ஆகவே நகைக்கு பெயர்கள் வேறு இருக்கிறது, ஆனால் விலை ஒன்றுதான், அந்த நகையும் ஒன்றுதான். அதுபோல் இறைவனுக்கு நாங்கள் பல பேர் வைத்திருக்கிறோம், அதன் தன்மையும் ஒன்றுதான், அவனுடைய அருளும் ஒன்றுதான், தயவும் ஒன்றுதான், கிருபையும் ஒன்றுதான். गहना एक कनक से गहना से ते मतलब से यही महम यही है, इसी में सब कुछ है। भाव ना दूजा, इसके लिए दूसरा भाव, दूसरा दाम नहीं है। सभी गहने का दाम, सोने का दाम एक ही है। कंकड़ के लिए एक दाम, चूड़ी के लिए एक दाम, हार के लिए एक दाम, ऐसा नहीं होता। उसी प्रकार नाम अनेक होने पर भी वो एक है, उसका महत्व एक है, उसकी महिमा एक है, दूसरी अलग अलग या अलग अलग नहीं है। कहन सुनने को दुई करी तापिन, हम लोगों ने क्या किया है? कहने के लिए, सुनने के लिए दो बना दिए हैं, तीन बना दिए हैं, चार बना दिए हैं. சொல்லிக் கொடுக்காம நான் வச்சுக்கிறான். நான் கம்மல் போட்டிருக்கேன், முக்குத்தி போட்டிருக்கேன், ஒட்டியாடம் போட்டிருக்கேன், வடையில் போட்டிருக்கேன் என்று சொல்லிக் கொள்வதற்கும் கேட்பதற்குத்தான் நாங்கள் நிறைய பேர் வச்சுருக்கோம். कहन सुनने को दुई करी तापिन, हमने कहने के लिए, सुनने के लिए बहुत सारे नाम हमने थोप दिए हैं. थोप दिए ना, சுமத்தி இருக்கிறோம் அதன் மீது, இதன் மீது, அந்த நகையின் மீது. उसी प्रकार एक नमाज एक पूजा. நாங்கள் மாதா கோயில் சென்றால், சர்ச்சுக்கு சென்றால் அங்கே என்ன செய்கிறார்? அங்கே என்ன நடக்கிறது? வழிபாடு நடக்கிறது. அதை அவர்கள் பிரேயர் செய்கிறார். மாஸ்க் சென்றால், मस्जिद को जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं वे लोग? नमाज पढ़ना बोलते हैं. नांगल தொழுகை நடத்துகிறோம். ठीक है. मंदिर को जाते हैं, कोयल को போகிறோம், तो वहाँ क्या होता है? पूजा, अभिषेकम, आराधने, पूजा, इतना होता है. तो हिंदू लोग आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना कहते हैं,
और मुस्लिम लोग नमाज कहते हैं और ईसाई लोग प्रार्थना कहते हैं। लेकिन तीनों अलग अलग नाम हैं तीनों के, लेकिन काम एक है। नाम अनेक, काम एक। वो उस काम को लेने वाला, वो प्रार्थना को लेने वाला, उस स्तुति को लेने वाला, उस अभिषेक को लेने वाला, उस अर्चना को लेने वाला एक है। वो कौन है? वही भगवान है। इसलिए उपासना की पद्धति अनेक हैं, लेकिन भगवान एक है। एक नमाज, एक पूजा, वही महादेव, वही मोहम्मद, वही ब्रह्मा, वही आदम कहिए। हर हर ब्रह्म महादेव। जो शिव जी की पूजा करते हैं वे क्या बोलते हैं? हर हर महादेव। जो विष्णु की पूजा करते हैं वे बोलते हैं गोविंदा गोविंदा। जो ईसा की पूजा करते हैं वे कहते हैं ओ लॉर्ड जीसस कहते हैं। जो नमाज पढ़ते हैं वे कहते हैं मोहम्मद मोहम्मद अल्लाह अकबर कहते हैं। लेकिन कहने का वो जो शब्द जो है, वो जो ढंग जो है, पद्धति जो है, वो अलग अलग है, लेकिन तात्पर्य एक ही है। क्या है? वो एक भगवान है। उस एक भगवान की कृपा हमें पानी चाहिए। इसी के लिए हम तड़पते हैं, रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, जाते हैं, आते हैं, नमस्कार करते हैं, दान करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसलिए वही महादेव भी वही है, मोहम्मद भी वही है, और ब्रह्मा भी वही है। आदम एव इंग्लिश में कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में वो आदम भी वही है, एक ही है। कोई हिंदू को तुर्क कहावे, एक जमीन पर रहिए। कुछ लोग हिंदू कहलाते हैं, कुछ लोग तुर्क यानी मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन कहलाने पर भी आप एक जमीन पर रहिए, एक भारत पर रहिए, एक हिंदुस्तान में रहिए, सब एक साथ रहिए। इसमें भेद नहीं है। कहने के लिए भेद है, लेकिन वास्तव में वो भेद नहीं है। आप भेदभाव मत मानिए। சொல்வதற்கு முன்னாடி வேறு பேர், ஆனால் வாழ்வு நீங்கள் ஒன்றாகத்தான் வாழ வேண்டும். ஆகையால் தான் நான் இன்றைக்கு நாங்கள் தமிழ்நாட்டிலே பாயி பாய் என்கிறோம். இந்து முஸ்லீம் பாயி பாயி. ஒரு முஸ்லீம் பார்த்தா பாயின்னு கூப்பிடுறோம். பாய் இங்கே வாங்க, பாய் கடைக்கு போய்ட்டாப்பா, भाई का खड़े भाई का कहते सो उसको भाई बोलते हैं। ऐसे भाई भाई देख सकते हैं। वेद किते पढ़ कुतमा, वे मौलाना वे पांडे। कुछ लोग वेद पढ़ते हैं, हिंदू लोग वेद पढ़ते हैं, कुछ लोग किते पढ़ते हैं, कुछ लोग जंदा वेसा पढ़ते हैं, कुछ लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, कुछ लोग मौलाना कहलाते हैं, कुछ लोग पांडे कहलाते हैं, सभी पांडे कहलाते हैं, कुछ लोग ब्राह्मण कहलाते हैं। लेकिन सब क्या बोलते हैं? इक मटिया के बाडे। ये कहते हैं सब इक मटिया के बाडे, बगरी बगरी नाम धराए। उन्होंने अलग अलग नाम रख लिए हैं, बगरी बगरी अलग अलग नाम रख लिए हैं। சிறிதாக இருந்தால் உலக்கு என்றோம், பெரிதாக இருந்தால் பாத்திரம் என்கிறோம், இன்னும் பெரிதாக கலையம் என்கிறோம், அதைவிட பெரிதாக இருந்தால் கடம் என்கிறோம், பானை என்கிறோம். இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த காலத்தில் பழைய காலத்தில் முதுமக்கள் தாலி என்றும் சொல்வார்கள். இப்படி அலகலக வேறு பேர் வசிக்கிறார்கள். ஆனால் எல்லாமே ஒரே மண்ணால் செய்யப்பட்ட மன்னர்கள் தான். இக்கு मटिया के बाटे, सब एक ही मिट्टी के बर्तन हैं। इसी प्रकार अलग अलग नाम रखते हैं, उनका महत्व एक है, उनकी महिमा एक है, उनकी प्रार्थना भी एक है। कही कबीर, दोनों बोले राम ही किनको न पाया। जो राम कहते हैं, जो रहीम कहते हैं, जो ईसा कहते हैं, लेकिन सब लोग भेदभाव बढ़ाते हैं। वो भेदभाव जो है भूल से करते हैं। अब मैंने बताकर तबदलाल செய்கிறார்கள், दोनों ही भूल करते हैं। किसी ने भी सच्चे रूप से, सच्चे दिल से भगवान को नहीं पाया। वे भेदभाव को बढ़ाते हैं, लेकिन वास्तव में वो सही नहीं है।
पे भूल करते हैं उनको सुधार लेना चाहिए और सबको एक साथ रहना चाहिए, एक साथ रहने देना चाहिए। यही उन लोगों का कर्तव्य है। बेकसी वे गाय कटावे बाद ही जन्म गंवाया। लेकिन सभी धर्म क्या बोलते हैं, सभी लोग क्या बोलते हैं, सभी महान क्या बोलते हैं, सबसे प्रेम करो, अहिंसा का पालन करो, अहिंसा का प्रचार करो। कुछ लोग बकरी काटते हैं, कुछ लोग गाय को काटते हैं खाने के लिए, ये तो हिंसा है, ये हिंसा मत करिए। गाय को काटना या बकरी को काटना दोनों बुरा है, दोनों हिंसा है। भगवान ने ये नहीं कहा कि हिंसा करो, बकरी काटो, गाय को काटो। बेकसी मीन्स बकरा, गाय। सो गाय को काटो, गाय का मांस मेरे लिए भेंट करो, बकरी को काटो, बकरी का मांस मेरे लिए भेंट करो, ऐसा भगवान नहीं मानता है। आटे விட்டு அதனுடைய இறைச்சி எனக்கு பரிசா கொடு, மாட்டை விட்டு அதன் இறைச்சி எனக்கு பரிசா கொடு என்று எந்த ஒரு இறைவனும் கேட்பதில்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் அப்படி வெட்டி தான் பிறந்த பேற்றை எடுக்கிறார்கள். பாதிகி ஜனம் கவாயா, அரிது மாண்டராய் பிறப்பது அது என்பார்கள். அந்த அரிதாக பிறந்த அந்த மனித பிறவியை அவர்கள் செய்கிறார்கள், இழந்து விடுகிறார்கள். बेकसी पे गाय कटावे बाद ही जन्म गंवाया। इस प्रकार वे अपने जन्म का फल जो है उसे भूल जाते हैं। इसलिए कबीरदास कहते हैं सब एक साथ रहिए, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भगवान के नाम पर समाज में भेदभाव मत बढ़ाइए। सब एक जमीन पर एक साथ, एक ही जन्मभूमि है हमारी, तो वहीं पर रहिए, मिलकर रहिए, भेदभाव को मिटाइए। इस प्रकार प्रस्तुत पद्य में कबीरदास जी ने भगवान के अनेक रूपों का, भगवान के अनेक नामों का, हम जो जो करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या करके उनको पूजा करते हैं, पूजा की सामग्री का, पूजा के भेदभाव का, समाज की भेदभाव का खंडन करते हुए कहते हैं हम सबको एक साथ रहना चाहिए। यहाँ यादव मोरे यावरों केड़े, इस प्रकार सब लोग एक हैं, भारत एक है। इन शब्दों के साथ मैं आज का ये भाषण समाप्त करता हूँ। और कल जो है, कल के लिए आपके लिए वो साहित्य लहरी, कल साहित्य लहरी में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। मैं हूँ सुंदर राजन। धन्यवाद।